کتاب آئی ہے ڈوگرا عہد کا رجوری۔ ڈوگرا راج کو ٹیکس میں تھا جی، بیاہ شادی پر ٹیکس ہوا تو نکاح کو ٹیکس ہوا تو، بکری پر ٹیکس ہوا تو، بلی پر ٹیکس ہوا تو، کتو ہے اس پر ٹیکس ہوا تو، گھر کے اندر کھڑکی دروازہ ہیں اس پر ٹیکس ہوا تو جی۔ ڈوگرا دور میں رجوری کی سرحد جڑی ہے دریائے چناب ریاسی تو پونی پارک یہ راجوری میں شمار ہوا تو، دریائے چناب تو لے گئے ارناس اور دوسری بکھی پمبر تک بیری پتن تو دیرا گلی اور پمبر گلی۔ جی ہاں، راجہ کا دور میں ایک نظام تھو اور اس نظام کے تحت رجوری میں 200 کچھ جو ہے وہ زیلدار تھا، چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جاگیر تھیں، 260 یا اس کے لگ بھگ جو ہے وہ جاگیر تھیں جیڑی مختلف لوکاں نہ دیتی گئی۔ اس میں گجرن کو لے 2 ہی جاگیر تھی بڑی، ڈوگرا عہد میں 2 بڑی جاگیر تھی، ایک یہ گول گلاب گڑھ کی ایک پیناڑنگ کی چودھری غلام محمد، اس کا والد صاحب بھی جاگیردار تھا اور زیلدار تھا، اور چودھری غلام محمد بھی آخری زیلدار تھا۔ گجر جاٹ کانفرنس جی بنی تھی اس میں تو بنیادی رول رہا ہے حضرت میاں نظام الدین لاروی کو، تو اس کو جو ہے وہ چودھری غلام حسن لسانوی کو بڑا رول ہے، تو اس سے واسطہ یہ قائم ہوئی کہ بھائی تاکہ گجرانا جو ہے وہ تعلیمی سطح پر، سماجی سطح پر، اقتصادی سطح پر اوپر اٹھائے گئے۔ اخنور کی کانفرنس میں، گجر جاٹ کانفرنس میں چودھری غلام عباس صاحب نے نمائندوں بنا کے بھیجے تھو کہ تم گجر زبی صاحب نا کہ تم گجر جاٹ کانفرنس ختم کر دیو تو مسلم کانفرنس میں ضم ہو جاؤ تو ہم اس سے ایک پلیٹ فارم تو اپنی سرگرمی جاری رکھیں گا۔ چنانچہ تو کافی اس پر بحث و تمیز ہوئی، تو اس تو بعد گجر جاٹ کانفرنس چودھری عبداللہ بھلی، چودھری حمید اللہ خان یا جتنے بھی لوگ تھا انہوں نے اس بات نال اتفاق نہیں کیو۔ ناظرین آداب، آج کو گجری پروگرام لے کے جاوید رائی تاری خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آئندہ تو تم نے کچھ جڑی نوی کتاب آ رہی ہیں انہوں کے بارے میں کچھ جانکاری دیا۔ امیر محمد شمسی صاحب جڑے ہیں رجوری کا ہمارا ایک بہت بڑا عالم ہے، ہسٹورین ہے، انہوں نے یہ کتاب آئی ہے ڈوگرا عہد کا رجوری۔ یہ کتاب جڑی ہے یا 400 صفحہ کے اوپر مشتمل ہے، اور اس میں ڈوگرا عہد کا بارے میں کافی جانکاری جڑی ہے وہ مہیا کی گئی ہوئی ہے۔ اور اس کتاب کو میں تمہیں دسنا چاہوں کہ رجوری کا بارے میں کافی تعارف ہے کہ اس کو موسم کیسو ہے، اس کو محل وقوع کی ہے، اس کی آبادی کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نال کچھ جڑی جاگیر تھیں اس سے لے گی انہوں کے بارے میں مفصل ایک جانکاری جڑی ہے وہ، اور ڈوگرا عہد میں کے جڑا ہے وہ سلسلہ تھا انہوں کے بارے میں پوری جانکاری ہے، اور یہ اردو میں کتاب۔ اور ہم نے امیر الدین شمسی صاحب نال اس پروگرام میں گفتگو کی ہے جڑی تمہیں دساں گا۔ ہوں صرف یہ دسنا چاہوں کہ اس کتاب کے اندر مکمل جانکاری ہے جڑی رجوری ہوئی تھی ڈوگرا راج کے دوران، اور اس کی حدود تھیں اور کتوں شروع ہوئی تھی کہ کت ختم ہوئی تھی۔ ہم نے اس کے بچ نہ صرف رجوری بارے گل کی ہے بلکہ اپنا قوم قبیلہ کا بارے میں بھی گل کی ہے کہ گجر جاٹ کانفرنس میں کیا ہوئے ہو، اور کیڑا جڑا ہے لوگ جڑا ہے اس لئے اہم تھا، اور کہ حادثات ہوئے ہیں 47 تو پہلا اس رجوری کی ترتیب کے اوپر، اس کے بارے میں یہ کتاب ہے اور اس کے بارے میں یہ پروگرام ہے۔ منا امید ہے کہ تمہیں یہ پروگرام پسند آ گیا ہو۔ ابھی حال ہی میں میری ایک کتاب ڈوگرا عہد کا رجوری جو 400 صفحات پر مشتمل ہے، یہ کتاب میری منظر عام پر آئی ہے۔ اس کتاب نہ لکھن واسطے منا 37 سال جو ہے میرا صرف ہو گیا، اور اس میں کافی سلسلہ میں لائبریریاں میں کتاباں نہ ٹونڈیو، کتابوں کو مطالعہ کیو، اور کنٹرول لائن گئے آر پار جیڑی پرانی شخصیات تھیں جنہوں نے اس مہاراجہ گلاب سنگھ پرتاپ سنگھ کو دور یا مہاراجہ ہری سنگھ کو دور دیکھو تھو، اور 47 کا حالات اور واقعات تو واقف تھا۔ ان لوگوں نال میری ملاقات ہوئی جنہوں میں مولانا اسماعیل زبی، ملک نعمت اللہ درحالوی، چودھری غلام نبی ولد چودھری وزیر علی دندوروی، اور اس کے علاوہ چودھری مقبول رضا صاحب، اور مرزا فقیر محمد راجوروی، مرزا متی اللہ راجوروی، اور راجوری ماں چودھری گلزار احمد صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ چونکہ وہ 47 کا حالات اور واقعات کا چشمدید گواہ ہیں،
यह 400 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल किताब है जो हाल ही में मंजर आम पर आई है। इसमें डोगरा दौर का हालात और वाक़यात, अवामी ज़िंदगी और उनको रहन सहन, उनको कल्चर, उनकी मईशत के थी और तालीमी हालात, उस सारी चीज़ों का ऊपर बड़ी तफसील नाल इस पर बात की गई है। बदकिस्मती की बात है कि डोगरा दौर अपनी कुछ शख्सी बातों की वजह तो तारीख में या अवाम में काफ़ी मुतनाज़ा दौर गुजरे है, लेकिन डोगरा दौर के अंदर दो तबका राजौरी के अंदर उन्होंने ज़्यादा जो है वो ज़्यादती की, जिसकी वजह तो अगर डोगरा दौर की कोई खूबी भी थी तो वह पस पर्दा चली गई। एक तबको राजौरी को सूदखोर मांगो थो, जिन्होंने एक ऐसो सूदी निज़ाम राइज कियो कि जिसके बायस वे गैर ज़रात पेशा तबको थो तो वो तबको 2,80,000 कनाल को मालिक बन गया। लोगों को पैसों नहीं तो ख़ास तौर पर गुजर तबको जो है वो बहुत ही पसमंदा थो और कसम पुरसी की हालत में अगर किसी ने 2 रुपया कर्ज दितो है तो उसकी ज़मीन पहले लिखा ली और फिर वो कर्ज सारी ज़िंदगी जो है उन्हें तो ख़त्म नहीं हो सके, सूद दर सूद। और सूद को निज़ाम ऐसो थो कि जिस वक्त ये सूदखोर तबको लोगों ने कोई कर्ज वगैरह दें था या सौदो सल्फ तय लिखे इस तरह था कि 9 रुपये का गुड़ तंबाकू, 9 रुपये गुड़ तंबाकू वाले, 12 रुपये का कपड़ा, 12 रुपये कपड़े वाले। तो इस तरीके नाल पहले उन्होंने ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब जो है उन्होंने लिखवा ली जाती थी। और ख़ास तौर पर गुजर तबको एक ऐसा ज़मींदार तबको थो, ये इस निज़ाम के अंदर इतना फंसे हो कि ये बिल्कुल बेज़मीन और खाना बदोश हो गया। तो उस दौर में इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जी महाराजा हरी सिंह का दौर में तहरीक उठी है, उसमें चौधरी दीवान अली और मौलाना मेहरुद्दीन कमर राजौरवी, मौलाना इस्माइल ज़बी, चौधरी सुल्तान फतेहपुरी, ये नुमाया शख्सियात हैं जिन्होंने इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई। और ये चीज़ बहर महाराजा तक पहुंची तो बड़ी बड़ी जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई, गुजर जाट कॉन्फ्रेंस कायम हुई और बहुत सारी जो है वो मंसूबा बनया। और जो कुछ भी तजावीज़ इन्हें लोगों ने महाराजा ने दी थी कि भाई आइंदा तो बाद ज़मीन ऐसा तो कि ये लोग ज़मीन का मालिक बन गया और ख़ास तौर पर गुजर और ज़मींदार तबको जो है वो बेसहारा हो गया। ये एक तय कर दें था कि साल में हमने इतनो गलो लेनो है, फसल वह या ना वह हर सूरत के ऊपर ज़मींदार ना उतनो गलो देनो पे तो अगर नहीं तो दे तो वह सूदी निज़ाम के अंदर इस तरह लपेटे जे था कि सारी ज़िंदगी उनकी नस्ल भी उस विचों नहीं थी निकल सकी। चौधरी दीवान अली मरहूम और मौलाना मेहरुद्दीन कमर राजौरवी, चौधरी सुल्तान फतेहपुरी, मौलाना इस्माइल ज़बी, इन लोगों ने तहरीक चलाई और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस की और कर गया था हुकूमत तो महाराजा हरी सिंह तो ये मुतालबो कियो कि ज़िमीदार तबको जो है बड़ा बड़ा जरा ज़िमीदार हैं जरा बटाई पर हिस्सा पर लोगों ने ज़मीन जो है वो कमावे लावा, उसमें यो ज़ाब्तो तय किया जाए कि निसफ की बुनियाद पर काश्तकारी है। जो भी ज़मीन के अंदर गलो वैगो वो निसफ काश्त करने वाला को वैगो तो निसफ मालिक को वैगो। चुनाचे आज भी हमारा इस खिता पीर पंचाल के अंदर यो कल्चर हिस्सा को जो है वो राइज है गो के अब यो ख़त्म हो रहे हैं चूँकि लोग काफ़ी खुशहाल हो चुका हैं। लेकिन यह हिस्सेदारी को जो सिस्टम है ये उस वक्त चौधरी दीवान अली और मौलाना मेहरुद्दीन कमर राजौरवी ने राइज किया तो जिसना महाराजा ने कबूल कर लियो और ये ज़ाब्तो बनाए कि आज तो बाद जो है वो लम सम तरीका पर कोई आदमी तय नहीं करेगा कि भाई लोगों को कितनों गलो लियो जाए। इसके अलावा चौधरी दीवान अली ने और मौलाना मेहरुद्दीन कमर राजौरवी ने गल्ला स्कीम जो है वो राइज की जेड़ी जिसको मैं तस्करो इस किताब के अंदर बड़ी तफसील के नाल कियो है कि जरा खुशहाल लोग हैं वे हर जगह जो है वो गल्लो जमा करें और वो गल्लो जिस वक्त तंगदस्ती को वक्त आगा ख़ास तौर पर बरसात का मौसम जिसमें लोगों को खान पीन की अशिया नहीं थी वे उस वक्त लोगों ना मुफ्त में फराहम किया जाए। यह तजवीज़ जड़ी थी यह फार्मूलो बहुत कामयाब रहे और इस तो भी लोगों ना बड़ो फ़ायदो हुआ। उस डोगरा दौर के अंदर गो के डोगरा दौर जो है वो शख्सी दौर थो और उसकी कुछ अपनी जड़ी खामी या कमज़ोरी वे अपनी जगह हैं। लेकिन एक तो यो सूदखोर तबको तो जड़ो यो उसना बदनाम करने में इसको बड़ो रोल रहो। दूसरा जड़ो महाराजा का निचली सतह पर अहलकार था
जी हाँ, राजा का दौर में एक निज़ाम थो और उस निज़ाम के तहत रजौरी में 200 कुछ जो है वो ज़ैलदार था, छोटी छोटी जो है वे जागीर थी। 260 या इसके लगभग जो है वे जागीर थी ਜਿਹੜੀ मुख्तलिफ लोगों ना दी गई। उसमें गुजर बरादरी विचों भी कुछ लोग था, कश्मीरी विचों भी था, हिंदू बरादरी विचों भी था, राजपूत तबका विचों मुख्तलिफ तबका का लोग था। और उन्होंने को बुनियादी उन्होंने अपने आगे नंबरदार, चौकीदार, पेशकार ये रखा हुआ था। इन्हों को काम वे था कि जो गलो हुआ है वो गलो इकट्ठो कर गए, या जो टैक्स में था उस वक्त का राइज वे टैक्स इकट्ठा कर गया तो मुकामी जेलदार ने देनो, जेलदार ने अपनो हिस्सों वसूल कर गया तो मुकामी जो गवर्नर या मुंतजिम है इलाका वो पहलो मुंतजिम जो है महाराजा गुलाब सिंह ने मियाँ हाठू ने उत रखे तो उसका सबूत करना वो फिर सरकारी खजाना में जमा करा। गो के डोगरा दौर के अंदर महाराजा को एक सिस्टम थो, एक निज़ाम थो, लेकिन मुकामी तौर पर जरा एहलकार था निचली सतह का वे उसकी पाबंदी नहीं था करें। उन्होंने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर ज्यादती की। लोगों की पोजीशन ये थी कि लोगों ने तन ढकन वास्ते कपड़ों या खान वास्ते रोटी भी नहीं थी मिले। वे जम्मू जैसा इलाका में या महाराजा तक जो है उनकी रसाई नहीं थी हो सके, तो लिहाजा वे उस मुकामी जरा एहलकार था उनका जुल्म और जबर के अंदर 47 तक जो है वो पिसता रहा। की खास काम किया जी डोगरा ने चंगा? महाराजा प्रताप सिंह ने चंगा काम यह किया कि उन्होंने सब तो पहले यह कि रजौरी में चंद मकामात पर प्राइमरी स्कूल राइज किया, तालीमी निज़ाम उन्होंने राइज किया, ये एक बहुत अच्छो काम उन्होंने किया। और लोगों ने इतला दी थी कि कोई ऐसी अगर बात वह तो वह मेरा तक रसाई कर सके। फिर महाराजा हरी सिंह का दौर में जी तहरीक चली है रियासत के अंदर शख्सी राज के खिलाफ, तो उसमें राजौरी के अंदर भी जो लोगों ने मुतालबात किया तो वे मुतालबात मतलब तंजीमें बनी, तो गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। तो जो भी मुतालबा लोगों का था तो उसमें किसी हद तक महाराजा हरी सिंह ने उन चीज़ों ना कबूल की और काफ़ी हद तक जो है वो इस्लाहात हुई। अलबत्ता जो सूदी निज़ाम थो उस निज़ाम की वजह तो लोग बुरी तरीका नाल जो है वो फंसा हुआ था। उसमें मुसलमान के अलावा जो है हिंदू बरादरी विचों जिन्हें लोगों ने इस सूदी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई और गरीब और ज़िमींदार तबका की मदद की, उसमें एक बड़ो ना जो है वो एडवोकेट नरसिंह दास वो है। एडवोकेट नरसिंह दास रजौरी को एक बहुत ही अहम शख्सियत थी और जिस वक्त लोगों का अदालत के अंदर चलान में था सूदी निज़ाम का सिलसिला में उन्होंने पर केस हुए था तो वो फ्री में लोगों की जिम्मेदारों की पैरवी करे हुए फ्री में उन्होंने मदद करेगी। 1947 में जिस वक्त हालात बड़ा पेचीदा हो चुका और रजौरी में कबायली आ गया और चारों तरफ से उन्होंने कबायलियों ने रजौरी ने घेरा में ले लियो। 9 नवंबर 1947 में उसने नरसिंह दास एडवोकेट ने अपना कारमा रजौरी का तमाम मुअज़्ज़ज़ हिंदुओं की और मुसलमानों की एक मीटिंग तलब की, जिसमें मिर्ज़ा फ़कीर मोहम्मद राजौरवी, हकीम फैज़ आलम सिद्दीकी, मिर्ज़ा मतीउल्लाह राजौरवी, चौधरी दीवान अली वगैरह लोग जो है वो शामिल था। और राजौरी शहर का भी हिंदुओं का चीदा लोग उसमें शामिल था, महाजन बरादरी का। उसने यह तजवीज़ रखी कि रजौरी के अंदर हिंदू और मुसलमान को कोई तजाद नहीं है, सारा जो इत तलखी और नाराज़गी है वह इस सूदी निज़ाम की वजह तो पैदा हुई है। तो लिहाजा यो है कि हम फैसलो करें आज के हम पिछलो जितनों भी सूदी निज़ाम है वो सारो जो है वो माफ़ कर दें और आइंदा यो निज़ाम जो है हम इस इलाका में राइज नहीं करेंगे। चुनाचे नरसिंह दास एडवोकेट ने सब तो पहले यो किया कि अपना बाप की जी रजिस्टर या सूदी निज़ाम को रिकॉर्ड थो वो उसने फाड़ गया, नजर आतिश की हो और बाकी लोगों ने भी कहो कि भाई तुम एक तरफा जो है वो सूद की माफ़ी को ऐलान कर दो। लेकिन उस वक्त हालात बहुत पेचीदा हो चुका था। कबायलिया ने रजौरी शहर ना घेरामा लियो वो थो और जिनकी क़यादत कैप्टन असलम खान मिनहास जो है वो कर रहे थो। तो लिहाजा ये सिलसिलो जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके चूँकि 12 नवंबर 1947 ने उन्होंने रजौरी में 3 दिन तो बाद तीसरे दिन हमलों कर दी। तो इससे तरह बिहारी लाल पेंच राजौरी की एक अहम शख्सियत थी, बिल्कुल गैर मुतासब और बहुत ही अच्छो आदमी तो। दीनानाथ मोदी एडवोकेट यह एक बहुत अच्छो आदमी तो। फिर तो आनंद स्वरूप खन्ना
आनंद स्वरूप खन्ना, ये चंद आदमी, आनंद स्वरूप खन्ना वो शख्सियत है कि जेड़ो 1947 तो बाद जिस राजौरी और पुंछ दोनों दो एक ज़िला था, पहले ज़िला निज़ाम कायम हुआ तो आनंद स्वरूप खन्ना ना राजौरी और पुंछ को मुश्तरका जो है डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर किया गया। और आनंद स्वरूप खन्ना की फैमिली की कहानी जी है वह बड़ी दिलचस्प है। आनंद स्वरूप खन्ना 12 नवंबर की रात ना हरजी लाल तहसीलदार को बैठो हो तो तहसील आता माँ कबायलियों की चिट्ठी मिली कि हमने राजौरी ने हर कीमत पर फतह करना है, तो लिहाजा सब लोग जो है गैर मुसल्ला होकर बैदका मैदान में निकल आए। तो हरजी लाल तहसीलदार तहसील को खजानों ले गया तो दरिया का रास्ता जो है फरार हो गया। अपना कमरा में लालटेन जलती छोड़ गया ताकि यो गुमान वह कि भाई तहसीलदार इतना ही है। और आनंद स्वरूप खन्ना उसको ले बैठो हो तो वो भी उसके नाल फरार हो गया। उसकी नौजवान बीवी, 2 नौजवान बेटी, 6 महीना को दीपक खन्नो, ये जो है बाकी रह गया। चुनाचे राजौरी जब कबायलिया ने आज़ाद करा ली तो मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन की क़यादत में आज़ाद इनकलाबी वार कौंसल कायम हुई। तो राजौरी का जितना भी हिंदू बरादरी का लोग था उन सारा ना तलाश कर गए। गुर्दन राजौरी का नवा में गुर्दन गारां का दरमियान में पनाह गजीन कैंप कायम किया और आगे पीछे मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन ने मुहाफ़िज़ तैनात किया कि कोई आदमी जो है वह इन्हें ना नुकसान ना पहुँचावे गैर मुसलमान। उस वक्त मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन ने देखो कि उसमें आनंद स्वरूप खन्ना की बीवी, नौजवान बीवी, 2 नौजवान बेटी और उन्होंने गोद में एक 6 महीना को बच्चों दीपक खन्ना थो। मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि यह एक बड़ी बाइज़्ज़त फैमिली है, इन्हें ना कैंप में रखना ठीक नहीं है। तो राजौरी की एक बड़ी अहम शख्सियत मुंशी जमालुद्दीन डार ने बुला गए, यह फैमिली उसके सुपुर्द की। इन्हें को 10 किलो सोना था। तो मुंशी जमालुद्दीन डार पहला राजौरी का जो है नामजद MLA गुजरे हैं। वे उन्होंने 10 किलो सोना मिर्ज़ा आनंद स्वरूप खन्ना की नौजवान बीवी, 2 नौजवान बेटी और उनकी गोद में दीपक खन्ना ने ले गए और 10 किलो सोना चले गया धराल। और पूरा 5 महीना जो है उनकी जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत की। और मुंशी जमालुद्दीन डार का बेटा नसीरुद्दीन डार जो डिप्टी कमिश्नर रिटायर हुआ है, इस वक्त भी बाहयात राजौरी में मौजूद हैं। वे बयान करें कि मेरा वालिद साहब ऐसा करें था कि 10 किलो सोना मेरी पुश्त पर बन गया था, ऊपर लोई दे गए, कंबल डाल गया तो फांट दे गया, मिना तैड़ी बकरियां ना ला छोड़े था कि कोई आदमी कारविचू इसने चोरी ना कर सके। इस तरीका नाल उन्होंने हिफाजत की। आनंद स्वरूप खन्ना भाग गया, दिल्ली चले गए। वो दिल्ली तो वाघा का रास्ता पाकिस्तान गए। जेल में जाकर चौधरी गुलाम अब्बास ने मुलाकात की, चूँकि 2 ज़माना तालिब इल्मी का साथी था और उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने उतू बंदा भेजा और मुंशी जमालुद्दीन डार ने और मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन ने चिट्ठी लिखी कि आनंद स्वरूप खन्ना की फैमिली ना बाहिफाजत जो है वो जेल में भेजी जाए। चुनाचे इन्होंने 10 किलो सोना और आनंद स्वरूप खन्ना की बीवी, 2 बेटी और छोटो बच्चों दीपक खन्ना जो आज भी दिल्ली के अंदर बाहयात है। तो मेरा उसके नाल टेलीफोन पर राब्तो रहा है। तो इंशाल्लाह हम यह किताब अनकरीब रिलीज़ करेंगे। तो उसने वादो किया कि हूँ इस फंक्शन में आऊँगा। गुज्जर जाट कॉन्फ्रेंस क्यों बनी जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी? असल में बात यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी में गुज्जर जाट कॉन्फ्रेंस की वजह यह बनी कि गुजरा नाल हमेशा जो है वो ज़्यादती रही है, चाहे वो 47 तो पहला को दौर थो या उसको बाद को या उस वक्त भी आया। तो उस वक्त भी ना तो मुसलमाना ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में सही नुमाइंदगी मिली तो ना उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी मिली। चुनाचे इन्होंने अपनो तशख़्ख़ुस कायम करने वास्ते ज़रूरी समझो कि भाई एक इलादा तो जो है या जमात जो है वो कायम की हो जाए और उसके अंदर उसको जो है वो चौधरी गुलाम असल लिसानवी को बड़ा रोल है। तो इससे वास्ते यह कायम हुई कि भाई ताकि गुजराना जो है वो तालीमी सतह पर, समाजी सतह पर, इक़्तिसादी सतह पर ऊपर उठाए गए। गुजर जाट कॉन्फ्रेंस जी बनी थी उसमें तो बुनियादी रोल रहा है हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी को। उन्होंने बहुत बड़ो बुनियादी रोल रहा है और पूरी इस रियासत के अंदर करना, मुजफ्फराबाद और पलंदरी, रावलाकोट, इस सारा इलाका में इस दो तबका ना जो ये पसमंदा थो और हर लिहाज नाल पिछड़े वो थो,
اس نے جوڑنا منظم کرنا اور انہوں کا سماجی تعلیمی اقتصادی طور پر انہوں نے اٹھان گئے ماں اور منظم کرنا میاں صاحب مرحوم میاں نظام الدین صاحب کو بہت بڑا رول تھا. وہ الگ بات ہے کہ 47 تو بعد ایک ایسا افراتفری کو ماحول پیدا ہو گیا کہ وہ شیرازوئی جو ہے وہ منتشر ہو گیا, لیکن انہوں کو خواب جو ہے وہ بہت اچھا تھا, ہم اسنا جو ہے وہ بہت سراہاں. تو گجر جاٹ کانفرنس کی بڑی بڑی کانفرنس ہوئی, اخنور میں ہوئیں جس میں 30,000 کے لگ بھگ لوگ شامل ہوا. پھر ایک زمانہ میں پروڑی گجراں کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس میں 35,000 لوگ شامل ہوا, اور اس میں جتنا بکرا لگا رجوری کا دداسن بالا کا ایک گجر طبقہ کا ایک حاجی صاحب تھا بڑا بزرگ, اس وقت میرا نام انہوں کا ذہن میں نہیں آ رہے, میں کتاب اپنی میں اس کو ان کو تذکرہ کیو ہے. تو انہوں نے بکرا دیتا اور لاگا مرزا سکالسی نے چاول 30,000 آدمی واسطے جتنا چاول لگا, مرزا سکالسی ایک بڑو جاگیردار تھا, اس نے چاول فراہم کیا, اور دداسن بالا کا ایک بزرگ نے جو ہے وہ بکرا فراہم کیا, اور میر پور بھمبر تو پلندری تک تو اور اخنور تک تو لوگ جو ہے اس میں شامل ہوا, جس کی صدارت رجوری کی ایک بڑی عظیم روحانی شخصیت حاجی نوران شاہ نے کی, اور قابل احترام جناب حضرت میاں نظام الدین لاروی صاحب بنفس نفیس اس کانفرنس کے اندر بھی موجود تھا, اور اخنور کی کانفرنس کے اندر بھی موجود تھا. اخنور کی کانفرنس کے اندر چودھری عباس صاحب نے مولانا اسماعیل زبی نے نمائندوں بنا کے بھیجو کہ تم کہو کہ یہ کانفرنس نہ تم ختم کر دو, گجر جاٹ کانفرنس اور مسلم کانفرنس میں آ جاؤ. لیکن میاں نظام الدین مرحوم اور دیگر قائدین نے یہ بات قبول نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہم گجرانا سماجی سطح پر تعلیمی سطح پر اوپر اٹھانے واسطے ضروری ہے کہ ہم اس فورم نے جو ہے وہ قائم رکھاں. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جس وقت ریاست میں الیکشن کو سلسلہ چلے تو پھر جاٹ کانفرنس نے بھی جو ہے گجر جاٹ کانفرنس بھی الیکشن میں کود پڑی, اس کا کچھ مثبت فائدہ بھی ہوا کچھ منفی بھی ہوا, یہ دو ہی چیز بہرحال ہوتی رہیں. تو بہرحال گجر جاٹ کانفرنس کا قیام چودھری عباس صاحب جٹ تھا نا, نہیں چودھری عباس صاحب رائیں برادری نال تعلق رکھیں تھا, اور بیسیکلی ان کی فیملی جیڑی ہے وہ جلندر تو آگے رجوری ماں جموں ماں آباد ہوئی تھی. جی ہاں, غلام عباس صاحب رائیں فیملی نے, جس نے ہمارے یہاں ملیار بھی کی ہو جائے یا رائیں فیملی ہے, اس نال تعلق رکھیں تھا. اور رائیں فیملی کا لوگ بھی آج میر پور یا اس برلا علاقہ ماں پمبر ماں اپنا اپنا چودھری لکھیں. بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی ہے کہ چودھری غلام عباس جو ہے وہ گجر تھا, گجر نہیں تھا, رائیں فیملی نے تعلق رکھیں تھا, اور جلندر وہ آ کر ہی آباد ہوا تھا. ڈوگرا عہد کا گجراں کو ذکر کرو. ڈوگرا عہد کا گجر جڑا ہے اس وقت کافی انہوں کی حالت بڑی قابل رحم تھی, اور آخری مہاراجا ہری سنگھ کا دور میں جڑی یہ تحریک گجر جاٹ کانفرنس کی اٹھی ہے, یا اس تو پہلے چودھری دیوان علی کو خاندان جو بیسیکلی اخنور کا امبارہ گاؤں کو رہن والا تھو, تو اس خاندان نے گجراں کی فلاح اور بہبود واسطے تعلیم واسطے انہوں نے اوپر اٹھان واسطے بڑی تحریک چلائی, اس اخنور خطہ میں بھی اور رجوری خطہ میں بھی. اور ان میں ایک بڑو اہم نام جو ہے وہ چودھری بلند خان کو آوے ہے, جس نے اخنور کی ایک چوٹی پر بہت بڑو تالاب, اس زمانہ میں پانی کی بڑی کمی ہوئی تھی, تالاب قائم کیو, اور تاکہ اس میں لوگ پانی کا استعمال کر سکیں. اور انہوں کو ایک بڑا رول تھا کہ جو بھی غریب کرانہ کی بچی جب اس کی شادی ہوئی تھی تو چودھری بلند خان اسنا ایک بڑا لینڈ لارڈ اور متمول آدمی تھا, تو وہ اپنی طرفوں چاہے وہ ہندو ہے مسلمان ہے شیڈول کاسٹ ہے, اس بچی نہ وہ اپنی جیب تو جو ہے خرچوں کر گیا تو اس نے جیز دیں تھا. تو انہیں لوگوں نے پھر چودھری دیوان علی کا والد صاحب چودھری اللہ داد خان صاحب پولیس افیسر رہے ہیں رجوری ماں, تو انہوں نے بھی رجوری ماں گجرن اٹھان میں بڑو رول ادا کیو. پھر ان کا بیٹا چودھری دیوان علی نے بڑو رول جو ہے وہ ادا کیو, غلہ اسکیم قائم کی, گجر جاٹ کانفرنس کا پلیٹ فارم تو بڑو رول ادا کیو. تو لیکن مجموعی طور پر ہم دیکھا کہ چند شخصیات نے چھوڑ گیا, تو مجموعی طور پر خطہ رجوری کا جڑا گجر تھا
वे उन्होंने हालत बड़ी काबिल रहम थी। छोटा छोटा जरा इलाकाई जैलदार मनसबदार या खड़पेंच था, उन्होंने बुरी तरीका नाल उन्होंने जो है वो दबा कर रखे तो, और महाराजा का दरबार तक उन्होंने आवाज़ नहीं थी पहुँच सके क्योंकि वे बेसहारा था, अनपढ़ था। मैंने दसेगा कि जड़ो ये तो जी गुलाम अब्बास इस गल के ऊपर नाराज थो कि गुजर जाट कॉन्फ्रेंस क्यों बनी? हाँ, चौधरी गुलाम अब्बास साहब इस पर नाराज था गुजर जाट कॉन्फ्रेंस का। वह नहीं था चाहें कि उनकी पहले कोशिश तो यही थी कि भाई एक ही जमात रियासत के अंदर रहे, मुसलमानों की नुमाइंदा जमात आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो लिहाजा वे इस बात नाल इतफाक नहीं रखे था। जी मौलाना इस्माइल जबी साहब ना उन्होंने पूछो जी कि गल करो या कोई मौलाना इस्माइल जबी साहब शुरू में तो गुजर जाट कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गया था, लेकिन वे बाद में उस तो अलग हो गया था। तो अलग हो गया, उन्होंने अपनी सारी सरगर्मी जी है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का स्टेज तो जारी रखी। अखनूर की कॉन्फ्रेंस में गुजर जाट कॉन्फ्रेंस में चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने, मेरा तो गलती होगी, चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने नुमाइंदों बना के भेजे थो कि तुम गुजर जबी साहब ना कि तुम गुजर जाट कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दो तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जम हो जाओ, तो हम इससे एक प्लेटफार्म तो अपनी सरगर्मी जारी रखेंगा। चुनाचे तो काफ़ी इस पर बहस व तमीज़ हुई, तो उस तो बाद गुजर जाट कॉन्फ्रेंस चौधरी अब्दुल्ला बुल्ली, चौधरी हमीदुल्ला खान या जितने भी लोग था उन्होंने इस बात नाल इतफाक नहीं की हो, तो लिहाजा वो गुजर जाट कॉन्फ्रेंस को वजूद जो है वो बरकरार दिया। ये 260 तुमने ज़ैलदार गिनवाए हैं रजौरी का, तो एक दम मैंने दसो कि रजौरी की सरहद केड़ी थी डोगरा दौर? जी डोगरा दौर में रजौरी की सरहद जी है दरियाए चनाब रियासी तो पौनी पारख ये राजौरी में शुमार हुआ तो दरियाए चनाब तो ले गए अरनास और दूसरी बखी पिंबर तक बेरी पतन तो देरा गली और पिंबर गली, ये रजौरी की सरहद थी। और पौनी पारक को पामला को ये सारो इलाको भी रजौरी में शामिल तो 260 के लगभग जी ये जागीर थी। इसमें बड़ी बड़ी जागीर जी है वे थोड़ी थी, बाकी छोटी छोटी जागीर थी, छोटा छोटा राजा था। बड़ी जागीर में पौनी पारक को जो जागीरदार थो वो तो राय मोहम्मद इकबाल खान, मिर्ज़ा फैमिली भी ताल्लुक रहा तो पौनी पारक के पीछे आज भी ऊपर उसको किलो मौजूद है। सुंदरबनी जिसने कहा जाए बजाल, असल में इसको ना बजाल है, तो आज भी रिकॉर्ड के अंदर वही है। बाद में कोई बावली थी उसके नाम पर सुंदरबनी मशहूर हो गए, बजाल इस वो ना है। तो ये बजाल की जितनी भी या जागीर थी, एक बड़ो जागीरदार थो राय गुलाम हुसैन, उसकी थी। और बाजा बाँ और बेरी पतन की जागीर मिर्ज़ा जो है इकबाल खान जो है उसकी जागीर थी। राजौरी की जागीर भी मिर्ज़ा को थी। थन्ना मंडी की जागीर जी है वह बख्शी ख़ानदान तो थन्ना मंडी को उन्होंने को थी। बहरोट, ददासन बाला, गमीर मुगला, पलांगड़, ला, बदा करना, यो कोई 84,000 कनाल को रकबो थो, जिसको ज़ैलदार जो है मिर्ज़ा मोहम्मद सैन थो। तो पैनाड़ा की जागीर चौधरी गुलाम मोहम्मद मरहूम जो है पैनाड़ा, तार साकरी, रिहान वगैरह ये चंद ग्रां उसका था। इसी तरह गुलाबगढ़ को इलाको मरहूम चौधरी अली मोहम्मद ज़ैलदार जो है वो उसको थो। कंडी माँ और बुदल के दरमियान में ज़ैलदार शिब राम थो, उसकी जागीर थी। ये बड़ा बड़ा ज़ैलदार था। बाकी जरा ज़ैलदार था वो छोटा, तो कोई 1 ग्रां को तो कुछ 2 ग्रां को छोटा छोटा ज़ैलदार था। ये चंद जरा ज़ैलदार था, ये बड़ा बड़ा। मजमूई तौर पर जो है कि ज़ैलदार चाहे कोई गुजर थो या कश्मीरी थो, राजपूत थो, हिंदू थो, मुसलमान थो, सबको रोल जो है वो एक ही थो कि पब्लिक ना दबा के रखना। तो उस दौर के अंदर पब्लिक की हालत जी है वह बड़ी काबिल रहम रह थी। अल्लाह ताला उन्हें लोगों की मगफरत फरमाया, उन्होंने कोताहियां ने माफ़ फरमाया, लेकिन बड़ी लोगों नाल ज़्यादती की है। गुजरां को कितनी जागीर थी जी रजौरी में? गुजरां को 2 ही जागीर थी बड़ी। डोगरा हैत में 2 बड़ी जागीर थी। एक ये गुलाबगढ़ की
तो एक पैनाडंगी चौधरी गुलाम मोहम्मद, उसका वालिद साहब भी जागीरदार था और ज़ैलदार था, और चौधरी गुलाम मोहम्मद भी आखिरी ज़ैलदार था। 2 ही जागीर थी बुजुर्गों ने, बस 2 ही थी। बाकी कोई छोटा मोटा जो है खड़पेंच या छोटा मोटा ओहदेदार में था, उन्हें कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं है। जम्मू में यह किताब जो है ग्रीन बुक सेंटर गुजर नगर में मौजूद है, तो राजौरी में जरा अहम बुक सेलर है उन्होंने दस्तियाब है। यह मार्च में आई थी, लेकिन हम इसने हाले तक रिलीज़ नहीं कर सके चूँकि कोरोना आ गया, तो जिसकी वजह तो हम ज़्यादा इसकी तशहीर नहीं कर सके। अच्छा, तो के टैक्स में था जी उसने डोगरा राज का टैक्स केड़ा डोगरा राज को टैक्स में था जी, ब्याह शादी पर टैक्स हुआ तो नकाह को टैक्स हुआ, तो सारी चीज़ों को मैं इसके अंदर तज़किरो की हुआ है। मतलब वह इसके अंदर किताब में तफसील मौजूद है, मैंने इस वक्त ज़ुबानी याद नहीं। तो अलबत्ता ये है कि बकरी पर टैक्स हुआ तो, बिल्ली पर टैक्स हुआ तो, कुत्तो है उस पर टैक्स हुआ तो, घर के अंदर खिड़की दरवाज़ा है उस पर टैक्स हुआ तो लोग इससे वजह तो लोग जो है वह ज़मीन छोड़ गया। और फिर उसका नाल जबरी बेगार जड़ी है वे सरकारी भी में थी, और जड़ा आगे महाराजा का एहलकार था उन्होंने भी। तो लोग जिस वक्त तंग पै गए तो पंजाब की तरफ मेहनत मजदूरी वास्ते, पेट की आग बुझाने वास्ते जें था, तो वही इस मोगर रोड का रास्ता नहीं था जें कि बेगार के अंदर पकड़ लिया जाएगा तो जंगलों में छप छपा गए जेगा जो चाहिए। उस जमाना का माइया लोकगीत आज भी पुराना लोगों ने याद हैं, कुछ को मैं जिक्र इस किताब में कियो। और रजौरी के लोगों के साथ ज़्यादती बड़ी हुई कि एक ज़माने में रजौरी को ज़िला भिंबर के साथ लगा दिया। भिंबर के साथ लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि लोग अपने सरकारी कामकाज या अदालती निज़ाम सिलसिले में भिंबर जब जाते थे तो भिंबर से 10-12 किलोमीटर पर पंजाब है, पंजाब में चले जाते थे, मेहनत मजदूरी करके कुछ खर्चा जो है ले आते थे। फिर ऐसा हुआ कि भिंबर से उसको काट के तो रियासी के साथ लगा दिया, ज़िला रियासी, तो रजौरी को तहसील का मुकाम दे दिया। अब रियासी जो है रजौरी के लोगों के लिए कल्चर के लिहाज से, आमदोरफ्त के लिहाज से, हर लिहाज से एक बिल्कुल अजनबी जगह थी, तो उसमें लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। मैंने दसो केड़ा मशहूर कास्ट जी का लोग था रजौरी में? रजौरी में सब तो बड़ी आबादी जरी है वह गुजर कबीला की थी, और गुजरों में तो फिर निचली सतह पर बहुत सारी ज़ात हैं, तो सब तो बड़ी ज़ात जड़ी है कबीलों जड़ो है वो गुजर कबीला को थो। और गुजरा ने रजौरी की तामीर और तरक्की के अंदर उन्होंने बड़ो रोल है। माल मवेशी पालनो, दूध फराहम करनो, घी मक्खन और इसकी ये सारी चीज़, माल मवेशी गोश्त वगैरह, भेड़ बकरी और ज़िम्मेदारी गुजरा राजौरी की तामीर में, रजौरी की खुशहाली में गुजर तबका को बहुत बड़ा रोल दिए। इस तो अलावा जो है मिर्ज़ा फैमिली थी, तो मिर्ज़ा फैमिली ये है कि मिर्ज़ा को जो दौर 1194 तो 1846 तक रहे है, इन्होंने यो किया कि जितनी भी अच्छी ज़मीन थी, जरखेज़ ज़मीन थी, अपना कुंभा ना गुरदासपुर में बुला गया कला नौर तो अच्छी ज़मीन उन्होंने दी थी। तो वे बड़ा मुतमव्वल था, और जाहिर है कि जिस वक्त है वो क्या है, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो शख्सी दौर था, तो फिर उसमें उन्होंने लोगों ने दबा के रखे। मसलन रजौरी में सब तो अच्छी ज़मीन जरखेज़ जड़ी है, किला लाम दरहाल तो ले गए तो सुंदर इस तक दरियाए चनाब तक, पौनी पारक का लास्ट दरियाए चनाब तक, यो एक ऐसी पट्टी है कि दो साइड उसके पहाड़ी हैं, दरमियान में एक खूबसूरत वैली है। लाम तो खुई रटा तो ले गए रियासी तक, ये साल में 3 फसल देने वाली ज़मीन है। तो आज भी इनके अंदर रिकॉर्ड जो है वो मिर्ज़ा फैमिली को इस वक्त चला लोगों गो के ज़मीन जड़ी रफूजी पार तो कंट्रोल लाइन का उस पार बाग पलंदरी रावलाकोट तो आया उन्होंने अलाट की हैं, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने को चले लोगों अच्छी ज़मीन जड़ी है इन्होंने लोगों ने मुंतकिल की। और हूँ समझूँ कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की किताब ज़िंदगी में अगर सब तो बड़ी कोई नेकी है तो वो ये ज़रही सलाहत है कि जिसके नाल उसने गरीब तबका ना ज़मीन का हुकूक मुंतकिल हुआ तो उसके नाल बड़ो फ़ायदो पहुँचे। इसी तरह ब्राह्मण तबको जो है रजौरी को एक बड़ो मशहूर और बड़ो कदीम तबको है, बड़ा कदीमुल अय्याम ते यानी चीनी सयाह हीवन सांग ने 630-31 में रजौरी को सफ़र किया है, तो उसने भी उसमें
ब्राह्मण तबका को जिक्र किया है। ब्राह्मण एक मजहबी तबको है और इसको भी रजौरी के अंदर अच्छो खासो असर रसूख रही है हमेशा, और ये मजहबी लोग रहे हैं, इन्होंने लोगों को इस्तेसाल इस तबका ने नहीं की हो। शमसी साहब, तुम एक बड़ी शख्सियत है रजौरी की, तुमने हिस्ट्री के ऊपर काम कियो, अदब के ऊपर काम कियो। हूँ थारो तारफ चाहूँ कि जड़ा अमीर मोहम्मद शमसी जी, ते कौन है अमीर मोहम्मद शमसी साहब, कित का हैं? बुनियादी तौर पर मेरो ग्रां राजौरी तो 15 किलोमीटर बुद्धर रोड पर सानू कोट तराला है। ठीक है। और हूँ रजौरी का तराला का मशहूर चौहान कबीला नाल ताल्लुक़ रखूँ, और मेरा कबीला के अंदर तराला का मियाँ लालुद्दीन तरालवी बहुत बड़ी शख्सियत, बुज़ुर्ग और बहुत बड़ा आलिम दीन गुजरे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का कोना कोना में लोग जाने। या कोई 14वीं 13वीं 14वीं सदी ईस्वी की बात है कि मारो यो कबीलो बुनियादी तौर पर गुजरात तो सिंध, पंजाब और पंजाब का गुजरात शहर तो पिंबर का रास्ता है, मुगल रोड का रास्ता है जिस वक्त, या मुगल रोड तामीर, मुगल रोड का रास्ता है, रजौरी खिता में दाखिल हुआ तो, और फिर आ गए मुख्तलिफ टांगरी, फतेहपुर और तराला और मुख्तलिफ जगह पर ये बिखर गया और आबाद हुआ था। उस कबीला नाल मेरो ताल्लुक़ है। मेरी तालीम दारुल देवबंद में हुई, और फिर हुकूमत उत्तर प्रदेश को इलाहाबाद एक बोर्ड है, उस विचू में अरबी फाजिल को एक इम्तिहान पास किया जो BA के मसावी है, और अलीगढ़ तो अदीब माहिर, अदीब कामिल वगैरह का कोर्स में किया। मेरो मशगलो जो है वो मुतालो करनो, और ख़ास तौर पर हिस्ट्री मेरो मौजू है और लिखनो। राजौरी की हिस्ट्री मेरी ख़ास दिलचस्पी को मौजू है, और उस पर मैं इस वक्त तक मेरी 3 किताब जो है वह मंजर आम पर आ चुकी हैं। खित्ता पीर पंचाल में फ़िरकापरस्ती की लहर, राजौरी में इस्लाम और मुसलमानों की आमद, और डोगरा अहद का राजौरी। 2 किताबें इस वक्त मेरी 3 किताबें इस वक्त ज़ेर तरतीब हैं। एक है खश अहद का राजौरी। खश अहद का राजौरी कोई 5वीं सदी ईस्वी से लेकर 980 ईस्वी तक चलता है, और दूसरी किताब जो ज़ेर तरतीब है वो है पाल अहद का राजौरी। पाल अहद का राजौरी 980 से 1194 तक का दौर चलता है, जिसमें ये राजौरी का खिता पाल राजाओं का राजवाड़ा रहा है। मुस्लिम अहद का राजौरी 1194 से 1846 तक चलता है, जब कलानौर गुरदासपुर से आने वाले जराल फैमिली के लोगों ने, पहले राजा नूरुद्दीन ने इसको अपना राजवाड़ा कायम किया, और फिर ये 600 कुछ साल तक, 650 साल तक जो है उनका ये राजवाड़ा रहा। 1846 में मायदा अमृतसर के रू से महाराजा गुलाब सिंह ने जब जम्मू कश्मीर को ख़रीदा और जम्मू कश्मीर रियासत की, मुत्तहिदा रियासत जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखी, तो उसमें राजौरी भी आ गया। यूँ अक्टूबर 1846 में राजौरी का खिता जो है रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर ज़म होकर महाराजा गुलाब सिंह की कलमरों में शामिल हो गया।